और देखकर आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसे महसूस करना एक अलग ही अनुभूति के स्तर पर हमको लेकर जाता है। और ये मेला, इसका कॉन्सेप्ट, इसका डिजाइन, सब कुछ इतना विलक्षण होता है, इसकी सोच ऐसी, उसकी परिकल्पना जिस रूप में इसके कॉन्सेप्ट की शुरुआत थी वो बहुत अनूठा है और इसीलिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। एक छोटा सा एवी है, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है, ये लगभग 1 मिनट का, उससे कम का ही है। उस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि 1 साल के गैप के बाद एक शुरुआत जो हो रही है वो कितनी एक अलग तरह की ऊर्जा और उल्लास के साथ हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एवी जो है वो आपके सामने प्ले करें ताकि आप उसे देख सकें। ही देखा होगा कभी उत्सव इस ढंग से, जहां समा बंधता है भारत के हर रंग से, परंपरा और संस्कृति का संग, कई राज्य और देशों का मधुर मिश्रण। क्राफ्ट मेला है ये दुनिया का सबसे विशाल, यहाँ आना जरूर है आपको इस साल, जहां हरियाणा है मेजबान राज्य, जम्मू कश्मीर थीम राज्य और उज्बेकिस्तान पार्टनर देश। अलग अलग नृत्यों और गीतों का प्रदर्शन बेमिसाल, पुरातन और आधुनिक दोनों का मिलेगा यहाँ साथ। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। I take this opportunity to welcome His Excellency Mr. Dilshad Akhto, who is a Ambassador of Uzbekistan and representing his country as a partner nation. I also take the opportunity to welcome Sri Ajbek, Chairman, Honorable Association from Uzbekistan, to grace this occasion. हमारे साथ में सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी टूरिज्म श्री अरविंद सिंह जी हैं। मैं उनका सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से यहाँ आने पे इस प्रेस मीटिंग में और जो कर्टन रेजन सेरेमनी है उसमें आने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जी, Ambassador of Republic of Uzbekistan, Mr. Dilshad Akhto. May I now request Mr. Dilshad Akhto, His Excellency, for his address, please. Thank you very much. Namaskar. Good morning, Excellency Shri Arvind Singh, Secretary Minister of Tourism, Government of India. Dear friends, it's a great pleasure and honor for me today to attend the curtain raiser event of 35th Minister of External Affairs, Minister of Tourism, Government of India and the Government of Haryana for inviting Uzbek for crafts heritage of our countries. As you know, we are linked really deep historical ties, deep-rooted historical ties. Ties date back to maybe 3,000 years. But we thought that this is a great opportunity for us. As we all know that Jammu Kashmir is truly the crown of incredible India, and perhaps it was very appropriate that in the 75th year of independence, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, that we should be with here, partnering with you here in the Surajkund Mela. I thought that it is a perfect opportunity for us, culture in its handicraft, in its arts. But I can assure you कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का आर्ट्स और क्राफ्ट जो है स्पेशली, there is perhaps no other place in the world which has so much on offer. So we are here participating, trying to give you a view of what all we have on offer. हमारे वहाँ पे जो हमारी shrines हैं, हमारे temples हैं, जो divinity है, a place where we have had a great synergetic ethos always, where Sufism and Vedic Hinduism have flourished side by side. We have a display of that as well. As you can see right behind us, we have the famous replica of the famous Shankaracharya temple, and towards the left we have the Shayam dance time, one of the most revered Sufi shrines of Jammu and Kashmir. And the kind of influences it has on our art, on culture, that is what we will have on display here. I must once again thank the authorities for having us here and also take this opportunity to welcome you all to Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, जैसा पहले कहा गया कि perhaps the beginning of spring season, spring is most beautiful in Jammu and Kashmir. This is the time when all the beautiful flowers
when we wake up from our winter sleep and everything starts coming out, be it our lupins, primroses. We have, by the end of this month, we would be celebrating the tulip garden, which has 1.5 million tulips growing there, Zabarwan Mountains ke daman mein and in front of the Dal Lake. I see no reason why people from all over the country should come and visit this beautiful part of our own country. While we will only be able to get you a view of what we have on offer, I hope that you and everybody else who come and visit this Mela are able to find time to come and visit your beautiful Jammu and Kashmir as well. So this is also an open invitation to all of you. I must thank the Ministry of Tourism, who have always been very supportive, and also the authorities here, and I hope that this Mela will be very successful. I can see so much happening, such great initiative taken by the authorities here, and I wish everybody the best of luck. Thank you. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय अरविंद सिंह जी का मार्गदर्शन और उनकी गाइडेंस हम सब के लिए बहुत मैटर करती है, इसीलिए इस मेले में इस बार बहुत कुछ ऐसा है जो उनकी सोच को साकार यहाँ देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आएं और आप सबसे मुखातिब करें। उनके भारत में राजदूत श्री दिलशाद अख्तोफ, मेरे सहकारी और जम्मू एंड कश्मीर के सचिव पर्यटन श्री सरमद हफीज, उनके साथ आए हुए श्री महमूद शाह, इस मेले के वाइस चेयरमैन और मेरे कलीग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म हरियाणा श्री एम डी सिन्हा, उनके सहकारी अधिकारी श्री कुमार जो इस मेले के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ स्थानिक प्रशासन के प्रतिनिधि श्री अरोड़ा, पुलिस कमिश्नर श्री यादव जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं, और यहाँ उपस्थित सर उज्बेकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, भारत सरकार, हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया से उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये बहुत हर्ष की बात है कि एक वर्ष के अंतराल के बाद ये जो महामारी हमारे पूरे देश में छाई हुई थी, कोविड की महामारी, उसके कारण हम पिछले वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं कर सके, और इस वर्ष भी जो बसंत पंचमी के समय पे ये मेला होता है उस समय नहीं कर पाए, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो म्यूटेंट है वो देश के कई हिस्सों में हावी हो गया था, और अब हम होली के उपरांत 19 तारीख का इसका उद्घाटन करके इस मेले को 3 से ज़्यादा सप्ताह चालू कर सकेंगे। आप सब यहाँ निश्चित ही आए हैं, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा कि इस मेले का जो ऐतिहासिक महत्व है सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं बट अपने देश के लिए भी, उसको आप निश्चित ही सबके सामने उजागर करेंगे। देश के विभिन्न भागों को अपने माध्यम से, वो प्रिंट मीडियम हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप निश्चित लाएंगे, क्योंकि इस मेले का एक इतिहास सन 87 में शुरू हुआ। पहले सिर्फ भारतीय राज्य और कुछ हिस्सों में ये सीमित था, लेकिन 2013 के बाद इस मेले ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। इस वर्ष जम्मू एंड कश्मीर तो पार्टनर राज्य है ही, और जम्मू एंड कश्मीर इस राज्य का अपने भारत के पर्यटन और कला और संस्कृति में कितना महत्व है ये सब आपको विदित है। पर साथ ही साथ उज्बेकिस्तान पार्टनर राज्य देश है। उज्बेकिस्तान के राजदूत ने उस देश का उल्लेख किया और उस देश के जो पुराने ऐतिहासिक संबंध है भारत से उसका उल्लेख किया। बट उज्बेकिस्तान के अलावा ऐसे 30 देश हैं जो मेले में सहभाग ले रहे हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, इथियोपिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, नामीबिया, सूडान, सेनेगल, अंगोला, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, मालदीव्स और ऐसे कई देश हैं जो इसमें सहभाग ले रहे हैं। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं, और निश्चित ही वो इस हमारे 75वें वर्ष का एक ये मेला, उस आयोजन और उस सभी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए एक मील का पत्थर होगा। मेले प्रशासन ने ई टेक्नोलॉजी और काफी ऑनलाइन बुकिंग्स की व्यवस्था की है ताकि आने जाने के सब लोगों को असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था की गई है, और डिजास्टर मैनेजमेंट की यहाँ कोई अगर एक्सीडेंट हो तो उसके लिए भी एक मॉक ड्रिल कर दिया गया है। मुझे आशा है और विश्वास है कि स्थानीय प्रशासन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने
सब प्रयत्न और सब प्रयास किए हैं जिससे कि ये मेला यशस्वी हो सके और इसका लाभ और आनंद सूरजकुंड, फरीदाबाद और हरियाणा के ही नागरिक नहीं पर भारत के कई क्षेत्रों से लोग आकर इसका फायदा ले सके। जैसा मैंने बताया कि 1 वर्ष के उपरांत हम लोग कर रहे हैं, तो कारीगरों को जो हस्तशिल्प इस क्षेत्र में, उनको भी एक बाजार मिलने का एक मौका 1 वर्ष के बाद मिल रहा है। मुझे स्थानीय प्रशासन के अधिकारी इन्होंने जो काम किया है, हम तो नियोजन कर देते हैं, बट स्थानिक स्तर पर काम करने को इनकी परिश्रम की बहुत जरूरत है। वो उन्होंने उस नियोजन में मदद की है, बट अगले 3 हफ्ते इनकी कड़ी परीक्षा होगी और मुझे विश्वास है कि इस परीक्षा में वो निश्चित उनकी जो मेहनत और लगन है वो काम आएगी। मैं फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए और मुझे आशा है कि इस मेले को यशस्वी करने में आप सब हमें सहकार्य करेंगे। धन्यवाद। चंद्रकांत कटारिया जी भी आप सभी मंच पर मौजूद हैं। प्रेस और मीडिया के सभी हमारे जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी सर की परमिशन लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी तरफ से सवाल हों, जो बात आप जानना चाहें, काफ़ी कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो भी प्रश्न होंगे उसको आप मंच को समर्पित कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, उसका स्पष्टीकरण यहाँ से मिलेगा। तो आप सबको हम इन्वाइट करते हैं इस इंटरैक्टिव सेशन के लिए। शाम वाली शिफ्ट में लगी है। पहले जैसे आधी सुबह लगती थी, आधी शाम को लगती थी। हमारी 2/3 से ज़्यादा फोर्स शाम के वक्त लगी है, उससे भी ज़्यादा। और इस समय ख़ास तौर पे हमने लाइटिंग का अरेंजमेंट बहुत अच्छा करवाया है और लगातार उसको करा रहे हैं। पार्किंग में जैसे लाइटिंग पहले नहीं होती थी, अब पार्किंग में पूरी हमने रिक्वेस्ट करके और डीसी साहब ने और सब ने पार्किंग में एक तो लाइटिंग बहुत अच्छी कराई है और एन रूट लाइटिंग बहुत अच्छी कराई है। उसके अलावा जो हमारी पार्किंग में अलग से, पहले तो पार्किंग के गेट पे ड्यूटी लगा करती थी, अब पूरी अंदर तक पूरी कवर्ड है पार्किंग भी। और सिविल में ख़ास तौर पे हमने ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जिसमें हमारी महिला भी हैं सिविल में और पुरुष भी हैं। तो महिलाएं, मैं पूरा एश्योर करता हूँ इस मंच से कि महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और चप्पे चप्पे पे पुलिस होगी किसी का। और 350 कैमरा भी हमने स्पेशल लगाए हैं जिनमें नाइट विजन भी है सारा का सारा। तो कहीं पे भी मतलब कोई ऐसा होने का चांस है ही नहीं, कभी भी इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। जैसा कि सीएम से जो भी बसेस चलेगी वो हमारी एफएमडी और जीएमडीए की, बिकॉज सिंस वो सीएनजी के कॉरिडोर में आता है तो सीएनजी की बसेस चलेगी। दिल्ली से जो भी ट्रैफिक आएगा उसकी उपयुक्त सुविधा की गई है ताकि कोई भी लोग वहाँ से आसानी से आए विद इन फरीदाबाद। सपोज करो आपके भड़कल वाले या ओल्ड वाले मेट्रो पे जो भी उतरता है तो वहाँ से शटल सर्विसेज है हमारी। सेम जो प्रहलादपुर वाला रोड है, जो हमारा बदरपुर बॉर्डर है, उससे भी है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी मेला विजिट करना चाहेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उचित प्रबंध किया है और 2020 से, जैसे आपने 2020 की सराहना की उसके लिए धन्यवाद, उससे भी बेटर करेंगे। थैंक यू। नगाड़ा यहाँ के संगीत में और यहाँ की संस्कृति में बहुत एक अनूठा हिस्सा रखता है और इसलिए और एक जोश भर देता है। दरअसल इस मेले में आप पहले जब आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे ब्रज क्षेत्र से, बंचारी क्षेत्र से जो नगाड़े की प्रस्तुतियाँ होती हैं तो